Welcome, dear students. Today we are going to deal with the mechanism of glycolysis or process of glycolysis. In the last lecture, we studied that during glycolysis, one glucose molecule breaks down and it results in the formation of two molecules of 3-carbon compound, that is pyruvic acid. And we also discussed about the fact that this process of glycolysis occurs in two phases. The first phase is energy spending phase or energy consuming phase, means the phase in which energy is utilized. So the first phase of glycolysis is that in which energy is utilized in the form of ATP. And in this phase, the various steps that take place are as सबसे पहले यहां पे क्या होता है, हमारे पास एक 6 कार्बन कंपाउंड होता है, दैट इज वी कॉल्ड एज ग्लूकोज. इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, ये 6 कार्बन वाला ग्लूकोज है, इसको यहां पे फास्फोराइलेशन होती है. मींस वन मॉलिक्यूल ऑफ ATP is utilized in this step, the very first step, that is the phosphorylation. Phosphorylation here means addition of phosphate group. यहाँ पे phosphate ग्लूकोज के साथ अटैच होता है और वो phosphate यहाँ पे आता है from ATP. ATP से एक phosphate ग्रुप आता है, जो phosphate ग्रुप यहाँ पे ऐड होता है ग्लूकोज के साथ. एंड दिस process of phosphorylation, that is when one molecule of phosphate group gets attached with glucose, it results in the formation of glucose 6 phosphate. means ग्लूकोज में जो 6 कार्बन होते हैं, 6th कार्बन पे यहां फॉस्फेट अटैच हो जाता है. It does not mean that 6 phosphate groups are attached, but it means only one phosphate group gets attached at the 6th carbon of glucose. ग्लूकोज के 6th कार्बन पे जो 6th पोजीशन पे कार्बन है, उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, एंड दैट फॉस्फेट ग्रुप कम्स फ्रॉम ATP. और यहां पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है, उस एंजाइम को हम नाम देते हैं हेक्सोकाइनेज, along with the divalent magnesium. The first step of glycolysis in the energy spending phase is phosphorylation. In phosphorylation, what happens? One molecule of ATP is utilized, and the phosphate that is derived from ATP gets attached to the 6th carbon of glucose, and this results in the formation of glucose 6 phosphate. इसमें जो एंजाइम यूटिलाइज होता है, that enzyme is hexokinase. Remember this. Second step here occurs that we call as isomerization. दूसरा स्टेप यहां पे जो होता है, दैट इज आइसोमेराइजेशन. व्हाट हैपन्स, जो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहां पे अपना एक आइसोमर बनाता है, दैट वी कॉल एज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. यहां पे सिर्फ आइसोमेराइजेशन होती है, और आइसोमेराइजेशन के लिए हमारे पास जो एंजाइम यूज होता है, दैट वी कॉल एज फॉस्फो
hexose isomerase. Phosphohexose isomerase catalyzes the process of isomerization, in which the 6 carbon glucose 6 phosphate gets changed into fructose 6 phosphate, and after that there occurs the second phosphorylation. That second phosphorylation which occurs here results in the formation of fructose 1,6 biphosphate. यहां पे हम देख रहे हैं कि जो फ्रैक्टोज 6 फास्फेट हमारे पास बन गया था ग्लूकोज 6 फास्फेट से थ्रू द प्रोसेस ऑफ आइसोमेराइजेशन, जिसको हम आइसोमेराइजेशन नाम देते हैं, आइसोमर बनाना होता है यहाँ पे। तो उसके बाद सेकंड फास्फोराइलेशन में एक और एटीपी यूज होता है, एंड दिस एटीपी रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एडीपी। और जो एंजाइम यहां पे यूज होता है उसको हम नाम देते हैं फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। हियर एटीपी के साथ डाइवेलेंट मैग्नीशियम भी यूज होता है, और एंजाइम जो यूज होता है दैट इज फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। This complete process of changing the glucose into fructose 1,6 biphosphate through 2 phosphorylations. एक phosphorylation यहां पे होती है and second occurs here is known as primary reaction. याद रखिएगा वो प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज चेंज होता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में दो फॉस्फोराइलेशंस के थ्रू। पहले स्टेप में एक फॉस्फोराइलेशन होती है, एक एटीपी यूज होता है, और थर्ड स्टेप पे दूसरी फॉस्फोराइलेशन होती है, सेकंड एटीपी यूज होता है, और ग्लूकोज चेंज होता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं यहां पे प्राइमरी रिएक्शन। सो व्हाट इज प्राइमरी रिएक्शन? प्राइमरी रिएक्शन इज कन्वर्जन ऑफ one molecule of glucose into one molecule of fructose 1,6 biphosphate through 2 phosphorylations. And after that what happens? There is the next step that we call as lysis. Lysis. Lysis means breakdown. Here occurs now the breakdown. Breakdown of what? फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जिसमें 6 कार्बन है, ये अब यहां पे ब्रेक हो रहा है दो मॉलिक्यूल्स में, ईच हैविंग 3 कार्बन्स। एक मॉलिक्यूल जो यहां पे बन रहा है दैट इज कॉल्ड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसमें 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, और दूसरा मॉलिक्यूल जो यहां पे बन रहा है दैट वी कॉल एज फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। It also contains the 3 carbons. This breakdown process of fructose 1,6 biphosphate into 2 molecules of 3 carbon compounds. 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, each one molecule is having 3 carbons. इसको यहां पे जो एंजाइम जरूरत लगता है that enzyme is called as aldolase. After that there occurs the one more isomerization. यहां पे जो 3 कार्बन वाला डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बन गया, ये फिर यहां पे रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में चेंज हो सकता है, and here the enzyme that is utilized for the conversion of dihydroxyacetone phosphate into phosphoglyceraldehyde
उसमें एंजाइम यूज होता है फॉस्फोट्रायोज आइसोमेरेज। फॉस्फोट्रायोज आइसोमेरेज, फॉस्फोट्रायोज आइसोमेरेज। मैं थोड़ा सा सम अप कर रहा हूं। ग्लूकोज 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, फॉस्फोराइलेशन हो गई, उससे बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एक एटीपी यूज हो गया। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नाउ चेंज इनटू फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ आइसोमेराइजेशन, आइसोमर यहां पे बनेगा। उसके बाद फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट, सेकंड फॉस्फोराइलेशन यहां पे दिखाता है, उसमें एटीपी एक और यूज होता है और ये चेंज होता है फ्रैक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। फ्रैक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में भी 6 कार्बन होते हैं। ये अब यहां पे ब्रेक हो रहा है, लाइसिस यहां पे होती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एल्डोलेस। 3 कार्बन वाले कंपाउंड, हर एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। एक है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दूसरा है फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड। और ये 2 मॉलिक्यूल जो होते हैं कौन कौन सा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड, ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। इसको जो एंजाइम यहां पे जरूरत पड़ता है, जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को कन्वर्ट कर सकता है फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड में, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज फॉस्फोट्रायोज आइसोमेरेज। This whole is regarded as the energy spending phase or energy consuming phase। और उसके बाद सेकंड फेज यहां पे यूज होता है, सेकंड फेज जिसको हम नाम देते हैं एनर्जी रिलीजिंग फेज। नाउ इट इज द पे ऑफ फेज। उसके बाद जो यहां पे फेज यूज हो जाएगा, दैट फेज इज कॉल्ड एज पे ऑफ फेज और एनर्जी रिलीजिंग फेज, जिसमें एनर्जी रिलीज हो जाएगी।